लेक्चर 58। पेज 1 जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म्स 1 स्लैब राइट एरो 5% 18% 2 लागू 22 सितंबर 2025 से 3 इसमें 7 पिलर्स हैं। 1 बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी की सफलता को आगे बढ़ावा। 2 रैशनलाइजिंग रेट्स फॉर फेयर टैक्सेशन निष्पक्ष कराधान के लिए दरों को तर्कसंगत बनाना। 3 सिंप्लीफाइंग फाइलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से फाइलिंग का सरलीकरण। 4 पुटिंग कंज्यूमर्स फर्स्ट उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना। 5 एम्पावरिंग एमएसएमईएस एंड मैन्युफैक्चरर्स एमएसएमईएस और निर्माताओं को सशक्त बनाना। 6 स्ट्रॉन्गर स्टेट्स स्ट्रॉन्गर भारत मजबूत राज्य मजबूत भारत। 7 लोअर टैक्सेस इक्वल्स हायर स्पेंडिंग कम कर इक्वल्स अधिक खर्च। पेज 2 4 फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स प्रोडक्ट्स लाइक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएचटी मिल्क pre-packaged and labeled chena or paneer, all the Indian breads will see nil rates. Household goods like soaps, shampoos, toothbrushes, toothpaste, tableware, bicycles now at 5%. Food items such as packaged namkeens, bhujia, sauces, pasta, chocolates, coffee, preserved meat etc. reduced from 12% or 18% to 5%. Consumer durables, TVs, LCD, LED, greater than 32, ACs, dishwashers, 28% right arrow, 18%. 5 home buildings and materials. Cement 28% right arrow, 18%. Marble travertine blocks, granite blocks, sand lime bricks 12% right arrow, 5%. Bamboo flooring joinery, packing cases and pallets, wood 12% right arrow, 5%. Page 3 6 automobile sector. Small cars, two-wheelers, Laliq 350cc 28% right arrow, 18%. Buses, trucks, three-wheelers, all auto parts, 28% right arrow, 18%. Note, 1 petrol and petrol hybrid, LPG, CNG cars, not exceeding 1200 cc and 4000 mm 28%, right arrow 18%. 2 diesel and diesel hybrid cars, not exceeding 1500 cc and 4000 mm 28%, right arrow 18%. 7 agriculture sector, tractors 12% right arrow 5%, tires and parts 18% right arrow 5%, harvesters, threshers, sprinklers, drip irrigation, poultry and beekeeping machines 12% right arrow 5%, biopesticides and natural menthol 12% right arrow 5%. Page 4 farming equipments items from agricultural, horticultural or forestry machines for soil preparation, cultivation, harvesting and threshing, 12% right arrow, 5%. 8 service sectors, hotel stays up to 7,500 rupees per day from 12% to 5%. Gyms, salons, barbers, yoga GST cut from 18% to 5%. 9 toys, sports and handicrafts. Handicraft idols and statues, 12% right arrow, 5%. Paintings, sculptures 12% right arrow, 5%. Wooden spush metal, bush textile dolls and toys, 12% right arrow, 5%. Page 5 10 education sector. Education has become more affordable with exercise books, erasers, pencils, crayons and sharpeners moving to 0% GST. Geometry boxes, schools cartons trays, 12% right arrow, 5%. 11 medical sector. 33 life-saving drugs, diagnostic kits, 12% right arrow, 0%. Other medicines including Ayurveda, Unani, homeopathy, 12% right arrow, 5%. Spectacles and corrective goggles, 28% right arrow, 5%. Medical oxygen, thermometers, surgical instruments, 12% or 18% right arrow, 5%. Medical, dental and veterinary devices cut from 18% to 5%. 3 cancer medicine, right arrow, 0% GST. Page 6 12 life and health insurance. Individual health insurance, 18% right arrow NIL. Individual life insurance, 18% right arrow NIL. GST exemption on life and health insurance premiums will expand financial protection and support the vision of Mission Insurance for All by 2047. E-way bill. Electronic way bill. जीएसटी के अंतर्गत माल की आवाजाही के लिए इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वह वस्तु इंट्रा स्टेट मूवमेंट अंतर्राज्य आवागमन या इंटर स्टेट मूवमेंट अंतर्राज्य आवागमन हो। अगर माल 50,000 रुपये से अधिक का हो तो इसकी आवश्यकता होती है। पेज 7
इसमें शामिल होता है डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, द कंसाइनर, द रिसिपिएंट्स एंड द ट्रांसपोर्टर, माल, प्रेषक, प्राप्तकर्ता एवं ट्रांसपोर्टर। यह इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है GSTN के माध्यम से। जनरेट होते समय एक यूनिक ई वे बिल नंबर प्राप्त होता है जो बेचने वाला, खरीदने वाला और परिवहनकर्ता के पास होता है। ई वे बिल न होने पर पेनल्टी 10,000 रुपये का या वस्तु के मुताबिक GST जो ज़्यादा होगा। 1 अप्रैल 2018 से इंटरस्टेट एंड 15 अप्रैल 2018 से इंट्रास्टेट के लिए ई वे बिल को अनिवार्य किया गया। वैलिडिटी 100 किलोमीटर्स। वस्तुएं जिसके लिए ई वे बिल आवश्यक नहीं है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, विनाशकारी वस्तुएं, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। पेज 8। नोट - एक ही राज्य में गोल्ड एंड प्रेशस मेटल के लिए आवागमन पर ई वे बिल की आवश्यकता है यदि उस राज्य में ये नियम है तो। गैस सिलेंडर पर राइट एरो, नो ई वे बिल। कच्चा रेशम पर राइट एरो, नो ई वे बिल। वुल एंड हैंडलूम, नो ई वे बिल। जीवित जानवर और प्लांट्स - नो ई वे बिल। GST कॉम्पोजिशन स्कीम, स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए और 75 लाख। पूर्वोत्तर भारत के राज्य एवं हिमाचल प्रदेश और सेवा उत्पादकों के लिए 50 लाख रुपए तक इस योजना का लाभ मिल सकता है। 1.5 करोड़ का मानक मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स व्यापारी के लिए है। टैक्स रेट्स: ए मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स 1%, 0.5% CGST and 0.5% SGST. Page 9. B. Restaurant, not serving alcohol, 5%, 2.5% CGST and 2.5% SGST. C. Service provider, -6%, CGST 3% and SGST 3%. इसके अंतर्गत हमें क्वार्टरली और एनुअली रिटर्न फाइल करना होता है। क्वार्टरली के लिए -CMP 08, एनुअली के लिए -GSTR 4। कौन GST कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं? 1. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, 2. इंटरस्टेट सप्लायर्स अंतरराज्य आपूर्तिकर्ता, 3. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति, 4. आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, 5. ऐसे व्यापार जो शराब से संबंधित है। GST कॉम्पोजिशन स्कीम को 1 जनवरी 2019 से लागू किया गया। पेज 10। GSTAT, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये एकमात्र एकीकृत अपीलीय फोरम है जहां पर GST संबंधी विवादों का निवारण किया जाता है। फ्लोचार्ट का विवरण आपके नोट्स में करों के नियंत्रण को एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस, इसका नियंत्रण CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका नियंत्रण CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा किया जाता है। इसका पुराना नाम CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स था। 1 नेशन 1 फोरम, एक राष्ट्र एक मंच, राइट एरो GSTAT। इसकी एक बेंच है राइट एरो, न्यू दिल्ली में। प्रिंसिपल बेंच, मुख्य बेंच। 31 स्टेट बेंचेस और 45 लोकेशंस पर यह कार्य करती है। पेज 11। प्रत्येक बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर, 1 सेंट्रल टेक्निकल मेंबर और 1 स्टेट टेक्निकल मेंबर। ये 3 पर कार्य करती है राइट एरो। S स्ट्रक्चर, राइट एरो, S स्केल, राइट एरो, S सिनर्जी। GSTAT ई कोर्ट पोर्टल, ऑनलाइन फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग, केस ट्रैक। ये एक सांविधिक निकाय है। ये GST एक्ट 2017 के तहत कार्य करती है। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। यह GST एक्ट 2017 के सेक्शन 109 के तहत परिभाषित है। टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटी के बीच -2nd टियर फोरम। सेंटर एंड स्टेट्स के बीच -1st कॉमन बॉडी है। अपील 3 महीने अंदर करना होता है। पेज 12। GST थ्रेशोल्ड, ये न्यूनतम एनुअल टर्नओवर जिस पर GST नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। श्रेणी: सामान्य राज्य, विशेष राज्य, ओनली गुड्स, 40 लाख, 20 लाख, ओनली सर्विसेज, 20 लाख, 10 लाख, बोथ, 20 लाख, 10 लाख। पेज 13। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, स्थापित 22 नवंबर 1951। ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 280 में आता है। अपॉइंट - राष्ट्रपति द्वारा। टेन्योर 5 ईयर्स। पहला वित्त आयोग 1952 से 1957 जिसके चेयरमैन थे KC नियोगी। 12वां वित्त आयोग
2005 से 2010, जिसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015, जिसके अध्यक्ष विजय एल केलकर थे। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020, जिसके अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। 16वां वित्त आयोग 2026 से 2031, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इस वित्त आयोग को 31 दिसंबर 2023 को अपॉइंट किया गया था। पेज 14। सदस्य 1 चेयरमैन, 2 1 सेक्रेटरी, 3 4 अदर मेंबर्स। 15वां वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग चेयरमैन NK सिंह, अरविंद पनगड़िया। सचिव अरविंद मेहता, ऋत्विक रंजन पांडे। 4 अदर मेंबर अजय नारायण झा, अशोक लहरी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष। नोट माइनस वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के तहत ये कार्य करती है। पेज 15। रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की सिफारिशें। ये राष्ट्रपति को निम्न सिफारिशें देता है। -1 शुद्ध कर प्राप्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्यों के बीच। शुद्ध या निवल कर प्राप्तियां इक्वल्स टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू माइनस टैक्स कलेक्शन पर खर्च। 2 राज्यों को सहायता अनुदान, आर्टिकल 275। 3 राज्यों के लिए समेकित निधि में वृद्धि करने के उपाय। स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। उद्देश्य लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन को मजबूत करना। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल। आर्टिकल 243 आई। पेज 16। हैस राज्य वित्त आयोग के उत्तरदायित्व। 1 संसाधनों का आवंटन। 2 वित्तीय जांच या वित्तीय मूल्यांकन। 3 अनुदान एवं सहायता के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करना। 4 नीतिगत सिफारिशें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। 16वां वित्त आयोग के लिए विचारणीय विषय। इसका अर्थ है कि वित्त आयोग कौन कौन से विषय पर अपना विचार विमर्श कर दे सकती है। 1 केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण एवं राज्यों के हिस्सों का आवंटन। 2 राज्यों को संचित की संचित निधि से सहायता अनुदान, अनुच्छेद 275। 3 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की भी सहायता के लिए राज्य समेकित निधि को बढ़ावा देने के उपाय। 4 आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत। पेज 17। वित्त आयोग निम्न सिफारिशें देता है। 15वां फाइनेंस कमीशन। फ्लो चार्ट का विवरण। वर्टिकल डिवोल्यूशन, लंबवत या ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत नेट टैक्स प्रोसीड्स, शुद्ध कर प्राप्तियों को सेंटर से राज्यों के बीच वितरित करना शामिल है। 15th FC 41%, लद्दाख को 1% एंड जम्मू कश्मीर को 1%। 14वां FC में 42%। 13वां FC में 32%। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, क्षैतिज विचलन या वितरण। इसके अंतर्गत राजस्व का वितरण राज्यों के बीच किया जाता है। 15वां वित्त आयोग में आय आधार। 14 FC, 15 FC। 1 जनसंख्या 27.5%। 15%। 2 क्षेत्रफल 15%। 15%। 3 वानिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र 7.5%। 10%। 4 इनकम डिस्टेंस 50%। 45%। 5 डेमोग्राफी 12.5%। 6 कर एवं राजकोषीय प्रयास 2.5%। पेज 18। 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। 1 टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, कुल अपेक्षित राजस्व 2021 से 2026 के बीच 135.2 लाख करोड़। 2 कुल राजस्व का वितरण राइट एरो 103 लाख रुपए करोड़। 3 वर्टिकल डिवोल्यूशन राइट एरो 42.2 लाख रुपए करोड़। 4 ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, राज्यों को सहायता अनुदान राइट एरो 10.33 लाख करोड़। नोट माइनस डायरेक्ट टैक्स के विवादों के निवारण के लिए सरकार द्वारा एक स्कीम बनाया गया, माइनस विवाद से विश्वास तक। इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित विवादों के लिए स्कीम माइनस सबका विश्वास स्कीम। ये दोनों फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम है। पेज 19।
टैक्स कलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन करों का एकत्रण एवं वितरण। 1 टैक्स लागू कलेक्ट एंड यूज केंद्र द्वारा। ए निगम कर। ई सीमा शुल्क। सी सेस एंड सरचार्ज। डी पूंजी लाभ कर। 2 टी लागू केंद्र द्वारा और कलेक्ट एवं यूज माइनस स्टेट। ए स्टैम्प ड्यूटी। ए बी राज्य उत्पाद शुल्क। 3 टैक्स लागू एवं कलेक्ट केंद्र द्वारा और राजस्व राज्यों में वितरित। ए वेल्थ टैक्स। बी सिक्योरिटी ट्रांसलेशन टैक्स एसटीटी। सी टर्मिनल टैक्स। डी सीएसटी आईजीएसटी। 4 टैक्स लागू एवं एकत्रित केंद्र द्वारा और प्राप्त राजस्व अनिवार्य रूप से वितरित केंद्र और राज्यों के बीच। ए इनकम टैक्स। पेज 20। 5 टैक्स लागू एवं एकत्रित केंद्र द्वारा और प्राप्त राजस्व राज्यों के बीच बांटा जा सकता है और नहीं भी। ए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 6 टैक्स लागू एकत्रित और उपयोग राज्य द्वारा। ए व्याट। बी कृषि आयकर। सी भू राजस्व। डी पेशा कर। ई बिजली कर। ऑफ वाहनों और घर पर कर। ई जी टोल टैक्स।